Everyone in Assam, you will find people preparing for government jobs, government exams, but hardly anyone is preparing to build something of their own. And that's exactly why Assam is still waiting for real growth. Hi, my name is Kangana and I am from Assam and welcome to my channel. So let's talk about why Assam needs more entrepreneurs. Ask anyone here, what's your dream job? And most will say government job. And it's not their fault because हम लोगों को यहाँ पे ना छोटी से ही सिखाया जाता है कि ठीक से पढ़ाई करो एंड तुम्हें बड़े होके गवर्नमेंट जॉब करना है एंड क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को हमारे बड़े को मतलब सबको लगती है बिजनेस मतलब बहुत रिस्की है एंड कोई अगर बिजनेस करना चाहे वो खुल के अपनी पेरेंट्स को या फिर किसी को भी बता ही नहीं सकती है। अगर कोई बोल भी दे बहुत ज़्यादा हिम्मत करके फिर उन लोगों को मतलब यही बोल के रोक देंगे कि बिजनेस करोगे अगर लॉस हो गया तो तुम्हारी क्या होगी। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब करोगे तो लाइफ फ्यूचर सिक्योर होगी एंड दैट माइंडसेट इज होल्डिंग अस बैक। My question is, অসমত startup এটা কৰিবৰ কাৰণে is it better than the other states of India? Are we having some pros? Actually তাৰ ভাগৰ দুটাই আছে মানে there are pros and there are cons মানে সবৰ ইউজ কেसेसৰ কাৰণে যেনেকে if I have to add কি আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নহয় মেবি you don't have a lot of money to invest on your startup. I think Assam is the best place. ইমান পইচা খৰচ নহব আপোনাৰ ঘৰ থাকিবা ঘৰ পৰা কাম কৰিবা but cons যদি এতিয়া মই কওঁ working culture. You'd hardly মানে এনেকুৱা বহুত proactive মানুহ বহুত কমে পাব who's like willing to work at a startup. You'd find a very talented মানুহৰ কমি নাই talented মানুহখিনি কিন্তু ইয়াতে startupত কাম কৰিবলৈ ready নহয়. They're working in big corporations, they're earning handsomely. So he risk factor to I think it's less. I think that is common with every person in anybody in India, right? For a startup because they'll have that risk of getting into a startup. I want to understand a little bit about these startup ecosystems. In Assam, we have something called the Assam Startup Nest. We have something at IIT under the Research Park. Do you think these incubation centers have yielded results? Fairly, yes. But the question is, how many are coming to the incubator centers? How many coming out? That's the question now, right? So, doesn't matter because trial, everybody has to experiment. How many can become viable? They will use it for the purpose of commercial exploitation is a question, right? But definitely compared to earlier stage, after establishment of Atal incubation centers, etc., the startups ecosystem and the people coming into the startup system because everybody is comfortable in pursuing the employment. They just go into some employment and happy with it. But from that, now youth are looking, fair number of youth are coming for exploiting the business. Instead of seeker, he wants to become the job creator. Yeah, happening is. But what is the percentage means? It could be 50%, it could be 60%, not beyond 60%. And 40% definitely. Assam has a talent, ideas and creativity, but no ecosystem. Assam में young people have ideas, but फंडिंग नहीं है, कोई है भी तो एक दो है और लोगों को पता नहीं है एंड नो मेंटरशिप। किसी को अगर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पता भी है तो वो मतलब दूसरे को बोलने से वो हिचकिचाती है क्योंकि वो लोग सोचती है कि अगर इफ़ दे शेयर देयर आइडियाज़ एंड अगर वो हम लोगों से ज़्यादा आगे बढ़ गई तो क्या होगा, इसीलिए हम लोगों से ज़्यादा अमीर बन गई क्या होगा एंड हम लोगों से बिजनेस ज़्यादा अच्छा चल गया तो क्या होगा, ये सोच के मतलब कोई तो सिखाता भी नहीं है। एक दो लोग हैं जिसको आता भी है और दूसरों को मतलब वो सिखाने से नहीं सिखाती है क्योंकि ये सोच के बारे में एंड दैट्स वाई कोई अगर करना चाहे भी कोई नई थिंग्स कोई नई बिजनेस करना चाहे भी तो वो डरता है क्योंकि क्या पता अगर फेल हो जाएंगे तो कोई अगर तुम्हें नहीं बताएगी कि तुम क्या क्या करना है एज ए मेंटोर चाहिए ना कुछ काम करने के लिए। अगर कोई तुम्हें गाइड ही नहीं करेगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे फील होती है कि क्या पता हम लोग अगर फेल हो जाएंगे तो इसीलिए ना असम पे बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि घर वाले ही उन लोगों को बोल देते हैं अगर तुम फेल हो जाओगे तो क्या करोगे, इसीलिए सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ते हैं। एंड जो भी अगर कोई बिजनेस करना चाहे भी, कोई किसी के पास अगर कोई आइडिया भी है
तो वो आइडिया अगर लगाने भी जाए तो भी मतलब लोग बोलते हैं कि आइडिया से नहीं चलेगी, तो इससे अच्छा है तुम्हारी फ्यूचर सिक्योर है, तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए चली जाओ। तो मतलब लोग आसाम पे ऐसा है, अगर गवर्नमेंट जॉब ढूंढते ढूंढते तुम्हारी उम्र निकल जाए, तुम्हारे एक भी रुपए की इनकम नहीं है, फिर भी लोग नहीं बोलेंगे कि तुम्हें बिजनेस कर लेना चाहिए, तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गवर्नमेंट जॉब करना बुरा है, करो, लेकिन साइड बिजनेस भी चाहिए, क्योंकि मैं एक खुद गवर्नमेंट जॉब करने वाली पिता की बच्ची हूँ। मुझे पता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम खा पी अच्छे से सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम लंच करने के बाद डिनर के लिए क्या खाओगे सोचना पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लग्जरी तुम्हें, अगर लग्जरी पसंद है ना तुम्हें, तुम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं कर सकते हो, ये मैं 100% श्योर हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ। तुम्हें अगर लग्जरी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं लग्जरी तुम्हें हासिल होने वाली है, तुम्हें एक साइड इनकम चाहिए ही चाहिए। Imagine if every district had 100 young entrepreneurs जो अपनी खुद की जॉब खुद ढूंढ लेंगे, दूसरे के लिए गवर्नमेंट के लिए नहीं रुकेंगे, तो हमारी आसाम कितने आगे जाएंगे। लेकिन यही करने के लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेना ही पड़ेगा कि तभी तो ये कर सकती हो। रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है खुद की अगर थोड़ा सा अमीर बनना है ना लाइफ में, तो खुद के लाइफ के लिए कुछ जुगाड़ करो खुद ही। इमेजिन इफ वी मेड आवर ओन ब्रांड्स फ्रॉम आसाम, क्लॉथिंग, फूड, क्राफ्ट्स एंड सोल्ड देम अक्रॉस इंडिया, तो हमारी आसाम कितने आगे जा सकती है। लेकिन यही करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगती है। लेकिन हाँ, करो, जॉब करना है करो, गवर्नमेंट जॉब करना है करो, उसके साथ भी अगर हम लोग के ये करेंगे, क्योंकि स्मॉल बिजनेस हम वैसे भी रन कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ भी, ये भी हम लोग कर सकते हैं। करके देखो, तो सोच के देखो, ये अगर करेंगे तो हमारी आसाम कितने आगे जाएंगे, क्योंकि वी नो कि आसाम कितने पीछे है। We don't need big investors. We need small dreamers who start something. आसाम में ना बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहले चाहिए कुछ ड्रीमर्स who start something from their room, their kitchen, their village. आजकल तुम्हें बहुत सारे लोग अब ट्राई भी कर रही है, बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर भी रही है अपने घर से ही, जैसे कि पिकल की बिजनेस हो या फिर केक्स की बिजनेस हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे कर भी रही है। एंड आई थिंक हम सबको करना चाहिए। एंड ये करने से, जब ये करने जाना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें बहुत बोलेंगे, अरे भाई तुम ग्रेजुएशन करके ये कर रही हो, तुम केक बना रही हो, तुम पिकल की बिजनेस कर रही हो, तुम्हें और कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो उसकी बातें जाए भाड़ में। लोग बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों की मुंह ही है बोलने के लिए। तुम लोगों की बात मत सुनो, क्योंकि तुम्हें लग्जरी पसंद है, ये सोच के काम करो। वो लोग आके तुम्हें लग्जरी फील नहीं करवाने वाले, तुम्हें खुद को लग्जरी करवाना होगा। एंड ये तुम्हें अगर पसंद है तो लोगों के बात सुन के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मत ही सुनो, यही अच्छा। बिकॉज वी हैव एवरीथिंग इन आवर स्टेट, लाइक कल्चर, आर्ट, फूड, टैलेंट, एवरीथिंग। जस्ट नॉट द बिलीव कि हम लोग कर सकते हैं, ये बिलीव करो एंड कर पाओगे, हम सब कर पाएंगे। बिकॉज असम विल ट्रूली राइज व्हेन आवर यूथ stop waiting for opportunities and start creating them. If you are from Assam or Northeast and have a small business idea, don't wait. Start small. You never know what can grow from your home, and that's why I decided to start something of my own, because if we don't, who will?